Welcome everybody, my name is Ankit Patel and today we are going about studying molecular basis of inheritance, and this is part 3 where we will study about proving genetic material, right? Till now we have studied about structure of DNA molecule, we have studied monomeric structure, polymeric structure, and we have studied that how this DNA molecule is packed. But right now we are going somewhat backward, right? All this discoveries was occurring near 1940s to 1950s, right? But now we are going back. Now we are going in 1926. And before even 1926, Meister have discovered that there is negatively charged chemical present in the nucleus. Forget about negatively charged, but the chemicals which is present in the nucleus, he have named the substance nuclein, right? He have named the substance nuclein. Those chemicals or those substances, not chemicals, but those substances are nuclein. And in 1926, till 1926, Mendel have discovered about inheritance. Then Thomas Hunt Morgan had made certain discoveries. Sutton had given the Mendel's theory. He connected Mendel's theory with molecular biology, right? He connected this with chromosomes, right? And now we have to narrowed our discovery towards molecular level, that which exactly chemical is responsible for transmitting inheriting character from one generation to another generation, right? This become very important for our scientists, understood? And that's why more scientists have came forward to discover about chemicals. To discover about this inheriting chemicals. Among them, first one is Frederick Griffith. He have proved that there are chemicals which are carrying this inheriting character from one generation to another, right? And this scientist is called Griffith experiment because Frederick Griffith had done this experiment. And this experiment was done on mice. He have used bacteria Streptococcus pneumoniae, and using this bacteria, he have to use two type of strain in this bacteria. One strain is smooth strain, that is S strain. It is called S strain because when it is grown in petri dish, they are producing smooth colonies. Their colonies are, they look smooth. That's why they are called S strain. Understood? And one more type of bacteria is there. One more type of Streptococcus pneumoniae is there, which is having rough colony. When they are produced in culture media, they are producing rough colonies, right? Surface of colonies are rough. Understood? So we have two strain, S strain and R strain, and these two bacteria are actually infected, and these two bacteria have made infected to mouse, right? To different mouse, obviously. Now the S strain bacteria have certain chemicals over its cell envelope, which makes it more stronger to fight against immunity of mice. Understood? More stronger to fight against antibodies or immunity of mice. So it can kill mice, it can infect mice, and thus it can kill mice, right? While the R strain bacteria, which is producing rough colonies in culture media, this bacteria cannot kill mice because this bacteria is not protected by immune system of mice, or they are not protected by antibodies of mice, right? So this bacteria cannot kill mice, but this bacteria eventually themselves get die. Understood? So when they are infected by S strain bacteria, you can see here that mice get killed. When these mice are infected with R strain bacteria, they didn't get killed, right? With the mice. Why in S strain bacteria they got killed? Because S strain bacteria is a virulent strain. It is producing smooth colony. It is having certain chemicals in their cell envelope which protect themselves from the immunity of mice. And R strain bacteria doesn't have such thing. That's why they are called avirulent strain, right? So we have two types of strain: virulent strain and avirulent strain, or it is also called as non-virulent strain. Understood? Now, we know that S strain is virulent strain, but if we hit kill this kind of bacteria,
if we heat killed, here Griffith have done, he and Griffith have heat killed this bacteria and then injected in the mice blood, right? Mice's blood. And what we got here is this mice again got saved, right? PD mice again got saved. Understood? You know why I'm calling PD mice? मैं क्यों इनको बेचारे बोल रहा हूँ? Because इस पे और अभी एक्सपेरिमेंट हो गए क्योंकि बच गए हैं, तो इसलिए बेचारे बोल रहा हूँ. Understood? अब ग्रिफिथ ने क्या किया, देखो ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लास्ट एक्सपेरिमेंट इज, ये तीन चीज की, ठीक है. अब लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ऐसा किया गया है कि ये एक्सपेरिमेंट में माइस है और आई एम सॉरी, दो स्ट्रेन साथ में ले लिए, एक ही कल्चर मीडिया में दो स्ट्रेन ले लिए. ठीक है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया. आई मीन हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया. दैट मीन्स लिविंग आर स्ट्रेन नॉन वायलेंट माइस बच गया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जिसमें भी माइस बच गया था. ये दोनों स्ट्रेन एक ही कल्चर मीडिया में ग्रो किया और फिर ये दोनों का मिक्स स्ट्रेन जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस गॉट किल्ड. नाउ हाउ दिस कैन बी अफेक्ट, आई मीन हाउ दिस कैन बी पॉसिबल. ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करने से पहले ऑब्वियसली ये सोचा होगा कि ये इसमें भी बच ही जाएगा, लेकिन कैसे मर गया? वो ऐसे मर गया कि यहाँ पर डीएनए का, आई मीन डीएनए छोड़ो, डीएनए को अभी नहीं लाते पिक्चर में. ठीक है, यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो केमिकल है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, यहाँ पर एक्चुअली एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में गया. कौन से बैक्टीरिया से कौन से बैक्टीरिया में आ गया? यहाँ पर हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ये तो बैक्टीरिया मर गया है. अब इसके केमिकल सारे अलग अलग हो जाएंगे. ठीक है, इसके केमिकल सारे मीडिया में डिफ्यूज होंगे, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिफ्यूज होगा. अब कोई जेनेटिक मटेरियल गलती से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के सेल में चला गया, राइट? नाउ दिस बैक्टीरिया वाज रिस्पांसिबल टू मेक हीट किल्ड, आई मीन टू मेक एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट. ये जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन था जिसकी वजह से वायरुलेंट बैक्टीरिया वायरुलेंट थे. ठीक है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट थे. अब यही केमिकल जब आर स्ट्रेन में चला जाएगा तो ये केमिकल आर स्ट्रेन को भी हिट, आई मीन वायरुलेंट बना देगा. इट विल ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज कर देगा. ठीक है, उसका फॉर्म चेंज कर देगा. ट्रांसफॉर्मर्स में गाड़ी होता है, रोबोट बन जाता है, दैट्स हाउ. तो यहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. यहां पर केमिकल्स, जेनेटिक मटेरियल से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. एक जेनेटिक मटेरियल जो मरा हुआ बैक्टीरिया है उसमें से डिफ्यूज हुआ. ठीक है, उसके डेड बॉडी में से, डेड सेल में से, डेड बॉडी में डेड सेल में से डिफ्यूज हो गया केमिकल, एंड दैट जेनेटिक केमिकल हैव एंटर्ड इन द लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, because of which this R strain bacteria got, I mean become virulent bacteria. Now यहां पर भी वो केमिकल प्रोड्यूस होगा जो उसके सेल एनवेलप में आएगा और बिकॉज ऑफ दिस केमिकल इट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ माइस, जैसा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में था. पहले मैंने थोड़ा बताया ना, अगर भूल गए तो वापस रिमाइंड करके देख लो. ठीक है, तो यहां पर भी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया अभी ऐसे हो जाएंगे कि वो जेनेटिक केमिकल जो उसके अंदर है ना, उसकी वजह से ऐसा हो जाएगा कि उसमें भी अभी कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह से वो भी माइस के एंटीबॉडीज या इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्टेड हो जाएगा, जैसे एस स्ट्रेन था. अंडरस्टूड? एस स्ट्रेन को हिट किल करके मार दिया, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल्स थे जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस हो रहा था. अंडरस्टूड? तो उसको जेनेटिक केमिकल बोलेंगे. जेनेटिक केमिकल जो था उसकी वजह से वो प्रोटेक्टिव केमिकल बन रहा था. ये जेनेटिक केमिकल अभी आर स्ट्रेन में चला गया. ठीक है, नाउ आर स्ट्रेन इज आल्सो एबल टू प्रोड्यूस दैट प्रोटेक्टिव केमिकल. अंडरस्टूड? ये मान लो कि इसके पास रॉ मटेरियल आ गया, ये रॉ मटेरियल से भी प्रोटेक्टिव केमिकल बना रहा है. ठीक है, तो यहां पर ये रॉ जेनेटिक मटेरियल उसमें चला गया जिसके वजह से वो अभी प्रोटेक्टिव केमिकल बना रहा है. तो नाउ आर स्ट्रेन इज ऑल्सो वायरुलेंट स्टेज. ठीक है, अब ये आर स्ट्रेन कैसे हो जाएंगे? वायरुलेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर से माइस मर गया. अंडरस्टूड? यही इफेक्ट को इसको बोलते हैं एक्चुअली. हम लोग को मालूम है कि ये कुछ नहीं डीएनए, उस टाइम पे मालूम नहीं था कि ये डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. उस टाइम पे यही पता चला था कि जो जेनेटिक केमिकल है वो मरे सेल्स में से डिफ्यूज होकर निकला था बाहर, और डिफ्यूज होकर जो कल्चर मीडिया है उसमें डिफ्यूज होते लिविंग सेल तक पहुंच गया और किसी तरीके से लिविंग सेल के अंदर चला गया वो केमिकल. अंडरस्टूड? या लिविंग केमिकल या वो सेल में केमिकल को, जेनेटिक केमिकल को ले लिया. अंडरस्टूड? व्हाटएवर वी हैड अकर, बट सीधी बात है कि जो जेनेटिक केमिकल से वो प्रोटेक्टिव केमिकल बन रहा था वो जेनेटिक केमिकल आर स्ट्रेन में चला गया. अब आर स्ट्रेन में भी प्रोटेक्टिव केमिकल बन गया तो आर स्ट्रेन भी हो गया वायरुलेंट.
अब बेचारा नहीं, खुशनसीब माइस मर गया, अंडरस्टूड। सो नाउ नो मोर एक्सपेरिमेंट वुड बी डन ऑन इट। तो ये है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, यही हुआ था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में, जिससे प्रूफ हुआ था कि भाई देयर आर सम केमिकल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अदर केमिकल्स इन लिविंग सेल्स, एंड दोस केमिकल्स आर एक्चुअली इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। दैट दोस केमिकल्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, अंडरस्टूड। तो ये प्रूफ हुआ था ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में, और ये जो इफेक्ट हुआ कि भाई ये जेनेटिक मटेरियल दूसरे नए सेल में चला गया और नया सेल है वो बदल गया, अभी वो ए वायरलेंट स्ट्रेन था तो वायरलेंट स्ट्रेन हो गया, तो इसको ग्रिफिथ इफेक्ट भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रिफिथ इफेक्ट, क्योंकि पहली बार यहाँ पर डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन हमारे ऑब्जर्वेशन में आया था, राइट। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रिफिथ इफेक्ट, अंडरस्टूड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ग्रिफिथ इफेक्ट एंड व्हाट इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। दिस इज एक्सपेरिमेंट, अगर ना समझ में आया हो तो वापस रिवाइंड करके पूरा एक बार देख लो, एक बार में आपको समझ में आ गया तो शायद आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, या फिर आपने कहीं और पढ़ा हुआ है या और किसी ने भी आपको समझाया हुआ है, ठीक है। पहली बार में समझना इसको डिफिकल्ट है, 12th स्टैंडर्ड में के अगर स्टूडेंट हो और पहली बार पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज बिट डिफिकल्ट, लेकिन आप बार बार इसको देख के समझ सकते हो, राइट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि भाई इट इज केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। कुछ केमिकल्स है जो एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं, और यही केमिकल्स में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि ये सेल या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, वेदर इट इज प्रोड्यूसिंग स्मूथ कॉलोनी और रफ कॉलोनी, राइट। दैट वी आर स्टडीइंग इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर्स, बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सारे कैरेक्टर्स के लिए भी ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। There are some, this genetic material is responsible, और वो genetic material और कुछ नहीं, कोई chemical ही है, but that was discovered in Griffith experiment, but ये chemical कौन सा है अभी तक ये discovered नहीं हुआ, right? It was not discovered in Griffith experiment until this scientists have came in picture. It was a bad joke, right? So let's find out what are the what they have did to find out DNA as genetic material and not it is not RNA or protein molecules, right? तो ये तीन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है वही एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया। यू कैन सी हियर यहाँ पर half of this diagram Griffith experiment shown and later part experiment performed by Avery, McLeod and McCarthy is been done here, understood। तो ये एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख सकते हैं कि पहले तो हम लोग ने देखा था कि भाई आर स्ट्रेन अगर हम लोग डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं माइस में तो क्या होता है, एस स्ट्रेन डालते हैं, आर स्ट्रेन इज नॉन वायलेंट, एस स्ट्रेन इज वायलेंट, फिर हिट किल एस स्ट्रेन डालते हैं, अगेन इट बिकम्स नॉन वायलेंट बिकॉज देयर डेड सेल्स आर देयर, हिट किल, अंडरस्टूड। लेकिन दोनों का जब मिक्सचर डालते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से नॉन वायलेंट लिविंग आर स्ट्रेन है वो लिविंग एस स्ट्रेन बन जाएंगे, अंडरस्टूड। लिविंग तो है ही लेकिन वो एस स्ट्रेन बन जाएंगे बाय टेकिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम दी remnants of dead cells, from the remnants means remaining of the dead cell, ठीक है। डेड सेल का जो बचा हुआ केमिकल्स है, मर गया है सेल लेकिन केमिकल्स तो अभी भी वहीं पर है, ठीक है। तो दिस केमिकल्स आर टेकन अप, सम ऑफ दिस केमिकल्स आर टेकन अप बाय लिविंग आर स्ट्रेन एंड दिस केमिकल्स आर जेनेटिक मटेरियल, मींस सम ऑफ देम विल बी जेनेटिक मटेरियल एंड बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन गॉट वायरुलेंट, अंडरस्टूड। आर स्ट्रेन कैसे हो गया, वायलेंट हो गया जिसकी वजह से माइस मर गया। तो ये सब हम लोग ने ग्रिफिथ में पढ़ा था। अब एवरी, मैक्लिओड एंड मैककार्टी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये लोग ने क्या किया है, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी टाइम पे अगर हम लोग डीएनएस, आरएनएस या प्रोटीनेस यूज करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज डीएनएस, आरएनएस एंड प्रोटीनेस। डीएनएस इज एन एंजाइम व्हिच विल डाइजेस्ट डीएनए मॉलिक्यूल, जो डीएनए मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा, सो डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर बचेगा नहीं, ठीक है। प्रोटीनेस इज एन एंजाइम which can digest protein, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके उसमें से एमिनो एसिड बना देगा। और आरएनएस एंजाइम वो एंजाइम है जो आरएनए को डाइजेस्ट करके उसमें उसका भी डिस्ट्रक्शन कर देगा, ठीक है। तो इफ वी आर यूजिंग डीएनए मॉलिक्यूल, तो डीएनए मॉलिक्यूल अगर यूज करते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर दो स्ट्रेन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। एक है हिट किल एस स्ट्रेन, हिट किल एस स्ट्रेन। तो वो जब लिविंग था तब वायलेंट था, लेकिन यहाँ पर हिट किल है तो अभी नॉन वायलेंट। और लिया हम लोग ने आर स्ट्रेन नॉन वायलेंट, ठीक है। अब दोनों को एक कल्चर मीडिया में डाल रखते हैं
तो आर स्ट्रेन वायरलेंट बन जाएगा। कैसे? जेनेटिक मटेरियल अपटेक करके। लेकिन अगर यहां पर हम लोग पहले डीएनएस नहीं देते, डीएनएस हम लोग बाद में देंगे, पहले प्रोटीनेज लेते हैं, ठीक है। और ये मीडिया में हम लोग प्रोटीनेज ले रहे हैं, ठीक है। तो हीट किल एस्ट्रेन बैक्टीरिया है, तो वहां पर सेल मर गया है, तो सेल के सारे केमिकल्स एक्सपोज है मीडिया से। तो यहाँ पर प्रोटीनेज है, जितने भी सेल के एक्सपोज प्रोटीन है वहां पर ये प्रोटीनेज एंजाइम एक्ट करेगा और सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। अंडरस्टूड? तो हीट किल एस्ट्रेन बैक्टीरिया के जितने भी प्रोटीन वाले केमिकल्स है वो सारे डैमेज हो जाएंगे, वो सारे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल था, अगर इफ प्रोटीन मटेरियल वाज जेनेटिक मटेरियल, देन प्रोटीन मटेरियल, अभी प्रोटीन है वो ध्यान से सुनना है, यहाँ पर प्रोटीन है तो आर स्ट्रेन में नहीं जा पाएगा, वो तो प्रोटीनेज एंजाइम से वैसे भी डाइजेस्ट हो गया तो नहीं जा पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो क्या होता? तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जब है ही नहीं तो प्रोटीन मॉलिक्यूल लिविंग आर स्ट्रेन में जाएंगे ही नहीं। अंडरस्टूड? तो लिविंग आर स्ट्रेन कैसे रहेंगे? नॉन वायलेंट रहेंगे। कैसे रहेंगे? नॉन वायलेंट। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया विल रिमेन नॉन वायलेंट बिकॉज if protein is genetic material and proteinase enzyme is provided here, then this genetic material is digested। तो genetic material कैसा हो गया है? digested हो गया। किसका genetic material? heat killed S strain बैक्टीरिया का genetic material अगर प्रोटीन है तो डाइजेस्ट हो चुका है, डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो यहां से कुछ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से कोई जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन में जाना नहीं चाहिए। अंडरस्टूड? जाएगा नहीं इफ प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल, राइट? तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर आर स्ट्रेन नॉन वायलेंट रहेंगे तो माइस जिंदा रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? माइस मर गया। क्यों माइस मर गया? बिकॉज प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन डैमेज हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। जेनेटिक मटेरियल कुछ कोई और है, ठीक है। यहाँ पर गलत अंदाजा लग गया। तो जेनेटिक मटेरियल कोई और है और जेनेटिक मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हुआ है, डैमेज नहीं हुआ, तो जेनेटिक मटेरियल है वो हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया के सेल्स में से, डेड सेल में से निकल के मीडिया से डिफ्यूज होके आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के सेल के अंदर अपटेक हो गया है। अंडरस्टूड? जो जेनेटिक मटेरियल है वो इट इज नॉट प्रोटीन एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय प्रोटीनेज एंजाइम। अंडरस्टूड? तो जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन में चला गया है। अगर आप वापस रिवाइंड करके देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस ये आर स्ट्रेन में चला गया है, वापस से मतलब ये आर स्ट्रेन में चला गया है जेनेटिक मटेरियल, और आर स्ट्रेन नॉन वायलेंट से अभी वायलेंट हो चुके हैं, इसलिए माइस मर गया, इसलिए खुश नसीब माइस मर गया। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेते हैं। यहाँ पर हम लोग आरएनए से ट्रीट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि चलो आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो आरएनए इज, लेट्स टेक आरएनए एंजाइम हियर। तो यहाँ पर हम लोग मीडिया में जब एस्ट्रेन, हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया ले रहे हैं, ठीक है, हीट किल्ड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और लिविंग आर स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है। ये दो बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया, लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, दोनों ही अलग अलग नॉन वायलेंट है। ये तो डेड सेल है तो कोई हिसाब से वायलेंस हो ही नहीं सकता। ये आर स्ट्रेन है वो नेचुरली नॉन वायलेंट है, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग एक मिक्सचर में ले रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आरएनए एंजाइम भी हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो क्या होना चाहिए? तो आरएनए जैसे ही मतलब डेड सेल है, हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया है, उसमें जितने भी आरएनए है इट इज एक्सपोज्ड टू द कल्चर मीडिया, ठीक है। हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया मर चुका है तो उसके सारे केमिकल्स आरएनए जितने भी आरएनए है वो सारे एक्सपोज्ड है कल्चर मीडिया से, और कल्चर मीडिया में आरएनए एंजाइम डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? आरएनए एंजाइम। तो ये आरएनए एंजाइम विल गेट डैमेज, यू विल गेट डाइजेस्ट बाय आरएनए एंजाइम। अंडरस्टूड? ये आरएनए मॉलिक्यूल है, आरएनए एंजाइम से डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो जेनेटिक मटेरियल कैन नॉट गो इनसाइड द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल नहीं जा पाएगा, ठीक है। इफ आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, क्यों? क्योंकि आरएनए मटेरियल अभी आरएनए मॉलिक्यूल है डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये आरएनए है, if it is genetic material then genetic material cannot entered in this non-virulent R strain bacteria. Understood? तो जेनेटिक मटेरियल अंदर नहीं जा पाया है अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो नॉन वायलेंट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो नॉन वायलेंट ही रह जाएगा और माइस बेचारा जिंदा रह जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग ने धोखा खा लिया है।
RNA is enzyme, I mean RNA is not genetic material, ठीक है, कुछ कोई और है, तो यहाँ पर भी रॉन्ग नंबर लग गया, कोई और जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है फ्रॉम हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया टू लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, तो ये चला गया, इट इज नॉट आरएनए, ठीक है, तो वो जेनेटिक मटेरियल क्योंकि चला गया है हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरियल सेल्स में से लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, और वो जेनेटिक मटेरियल चला गया है, इसलिए लिविंग नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं एंड नाउ दे आर वायरुलेंट, सो दे आर एबल टू किल माइस, अंडरस्टूड। और यहां पर भी माइस माइस खुश नसीब माइस मर गए, अंडरस्टूड। तो आरएनए से माइस मर गए, आरएनए जब यूज किया तो माइस मर गए, आरएनए से नहीं, आरएनए जब यूज किया तो माइस मर गए, हम लोग ने प्रोटीनेज जब यूज किया तभी भी माइस मर गया। अब चलो डीएनए डाल के देख लेते हैं, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पर एस्ट्रेन फिर से हीट किल एस्ट्रेन बैक्टीरिया और लिविंग नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया दोनों को साथ में कल्चर मीडिया में रखते हैं, यहाँ पर डीएनए एंजाइम डालते हैं कल्चर मीडिया में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी डीएनए है वो एक्सपोज्ड है मीडिया से, मीडिया के सारे केमिकल से एक्सपोज्ड है, ये हीट किल एस्ट्रेन बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। हीट किल एस्ट्रेन बैक्टीरिया में जितने भी डीएनए है इट इज एक्सपोज टू डीएनएज इन दी कल्चर मीडिया, तो डीएनएज एंजाइम है वो हीट किल एस्ट्रेन बैक्टीरिया के सारे डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। अब मान लो ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि डीएनए सारा डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल बचा ही नहीं है अभी, इफ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, अंडरस्टूड। तो डीएनए बचा ही नहीं है यहाँ पर, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल लिविंग नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में नहीं जा पाएगा, अंडरस्टूड, जिसकी वजह से लिविंग नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया नॉन वायरुलेंट ही रह जाएंगे and it will not affect mice, it cannot kill mice, तो mice बेचारा यहाँ पर जिंदा रह जाएगा, ठीक है। और यही चीज हो रही है यहाँ पर, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। जब हम लोग ने ये मीडिया में जहां पर हीट किल एस्ट्रेन बैक्टीरिया एंड लिविंग नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एक मीडिया में लिया है, उसमें डीएनए भी डाला है, लेकिन ये डीएनए से क्या हो रहा है, ये डीएनए है, डीएनए को डाइजेस्ट कर रहा है, डिस्ट्रक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से डीएनए आर स्ट्रेन बैक्टीरिया पे नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, फ्रॉम नॉन वायरुलेंट टू वायरुलेंट नहीं हुआ है, अंडरस्टूड। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया अभी नॉन वायरुलेंट ही रह गए हैं, तो इट कैन नॉट अफेक्ट माइस, इट कुड नॉट अफेक्ट माइस, अंडरस्टूड। तो ये एक्सपेरिमेंट में माइस को अफेक्ट नहीं कर पाया था, तो माइस बेचारा जिंदा रह गया था, अंडरस्टूड। अब ये जिंदा क्यों रह गया था, ये बेचारा क्यों है मालूम है ना, जिंदा रह के इसकी और एक्सपेरिमेंट होने वाला है, ठीक है। तो यही हुआ एवरी मैककार्टी एक्सपेरिमेंट में, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उस टाइम पे बाकी सारे साइंटिस्ट को ये एक्सपेरिमेंट इतना कन्विंसिंग नहीं लगा, ठीक है। तो एवरी मैककार्टी ने इतनी मेहनत की, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो पूरा ब्रेन का दही बनाने वाला एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट वो लोग ने समझा और उसी पे वो लोग ने आगे काम किया। सो इट वाज रियली अ वेरी गुड वर्क, बट इट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट दैट टाइम, अंडरस्टूड।